Good morning, everybody. I, Roshan Lal, Senior Lecturer in Mathematics, Kalpana Chawla, Government Polytechnic for Women, Ambala City. Today, we will discuss on the topic of matrices and determinants. Multiplication of matrices. Let A and B be matrices of order m by n and n by p respectively. The product AB of matrices A and B is defined only, means multiplication is possible if the number of columns of A is equal to number of rows of B. The product AB will be matrix of order m by p. If A is the matrix AIK of order m by n and B is the matrix of order BKJ of order n by p, here number of columns in A equal to number of rows in B that equal to n, means multiplication is possible, or we can say AB is defined and that will be of order m by p. Hence multiplication of A and B is defined and order of AB will be m by p. In the product AB, A is called prefactor of AB and B is called the post factor of AB. कहने का मतलब क्या है, AB के अंदर क्योंकि A पहले लिखा गया है तो इसको हम प्रीफैक्टर बोलेंगे, B बाद में लिखा गया है इसलिए इसको पोस्ट फैक्टर बोलेंगे. For example, let A is the matrix A11, A12, A21, A22. It is a square matrix of two order 2 by 2, दो रो है इसमें, दो कॉलम है. And B is the matrix B11, B12, B13, B21, B22, B23, 2 by 3. It is a rectangular matrix. Here order is 2 by 3. There are 2 rows and 3 columns. Here product AB is defined because number of columns of the matrix A equal to number of rows of matrix B, that is equal to 2. So multiplication is possible. So AB will be equal to A11, A12, A21, A22. इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो मैट्रिक्स सेकंड थी हमारे पास, B11, B12, B13, B21, B22, B23. मल्टीप्लिकेशन देखिए एरो जैसे डायगोनली दिखा रखे हैं, मींस पहली मैट्रिक्स की पहली रो को लेंगे, दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम को लेंगे, A11 को B11 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस A12 को B21 के, मीन्स फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ, थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ और उनको जोड़ते जाएंगे. देखिए इसमें A11 B11 प्लस A12 B21. सेकंड एलिमेंट देखिए A11 B12 प्लस A12 B22, A11 B13 प्लस A12 B23, A21 B11 plus A22 B21, A21 B12 plus A22 B22, A21 B13 plus A22 B23. AB जो हमने मैट्रिक्स देखी है इसमें भी 2 रो और 3 कॉलम हमारे पास आए. Working rule to find the product AB. First step, identify the number of columns of A and number of rows of B. If these are not equal, then AB is not defined. Means multiplication is not possible. अगर पहली मैट्रिक्स के रो की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम, पहली मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरी मैट्रिक्स की रो की संख्या के बराबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है. इन केस दीज आर इक्वल देन AB इज डिफाइंड. अगर ये दोनों बराबर हैं, मींस स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर रोज और कॉलम की संख्या बराबर हैं तो मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज पॉसिबल. Step 2, draw a horizontal arrow below the first row of A and a vertical arrow on the right of the first column of B. Verify that the number of elements above the horizontal arrow and on the left of the vertical arrow are equal. These arrows will also indicate that only rows of A and only columns of B are to be used for finding the elements of the product AB. जैसे मैंने पहले ही बताया, जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक है उसके कॉलम में कितने एलिमेंट हैं, सेकंड जो मैट्रिक्स है उसकी रो के अंदर कितने एलिमेंट हैं, उनके हमने मल्टीप्लाई कर दिया.
Step 3, to find the ijth element of AB, multiply the elements of ith row of A with the corresponding elements of the jth column of B and then add these products. हमने corresponding element को multiply करके जोड़ा था और वो हमें elements मिलते गए थे. जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, find the orders of the matrices AB and BA if defined for the following matrices. हमने देखना है पहले इनके ऑर्डर डिफाइंड हैं कि नहीं हैं. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए 2/2 मैट्रिक्स के ऑर्डर देखें स्क्वायर मैट्रिक्स है. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी आपको दे रखी है 2/2 ऑर्डर की. ऑर्डर ऑफ ए फिर सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो पार्ट है 2/3 के है और ऑर्डर ऑफ बी 3/4 दे रखे हैं. फॉर द प्रोडक्ट ए बी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए आर 2, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी आर 2 इन फर्स्ट पार्ट. Because number of columns of first matrix equal to number of rows of second matrix, therefore multiplication is possible and these are equal, so AB is defined. So order of AB भी 2/2 ही होगा. Now हम देखना चाहते हैं क्या BA possible है. Order of A is 2/3 and जो order of matrix B है that is 3/4. For AB number of columns of A equal to 3, number of rows of B equal to 3, these are equal, so AB is defined, means multiplication of these two matrices is also possible, so we can find AB. Order of AB is 2/4. मल्टीप्लिकेशन के बाद क्योंकि कॉमन ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा तो 2/4 की मैट्रिक्स मिलेगी. थर्ड पार्ट में ऑर्डर ऑफ A is 2/3, ऑर्डर ऑफ B is 2/3. फॉर AB number of columns of A is 3, number of rows of B is 2. These are not equal, so AB is not defined. Question number 2. If A is a matrix having elements 4, 3, 7, 2, 1, 5, 3, 8, 2, 6, 0, 8 of order 3/4. There are 3 rows and 4 columns. On the same pattern there is a matrix B having 4 rows but 2 columns. Elements are 3, 2, 1, 5, 6, 8, 8, 9. Is the product AB defined? हमने पहले तो ये देखना है क्या AB defined भी है कि नहीं है. If defined, अगर वो defined है then find A12, A21 where Aij is the element of AB placed at ith row and jth column. मीन्स मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें बताना है ये कौन सा एलिमेंट होंगे. सॉल्यूशन देखिए, number of columns of A is 4, number of rows of B equal to 4, these are equal, so AB is defined and is of order 3/2. जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी और ऑर्डर 3/2 होगा. वी हैव AB 4, 3, 7, 2, 1, 5, 3, 8, 2, 6, 0, 8. सेकेंड मैट्रिक्स 3, 2, 1, 5, 6, 8, 8, 9. मल्टीप्लिकेशन देखिए फिर वैसे की फर्स्ट रो ऑफ प्री फैक्टर, सेकेंड कॉलम ऑफ पोस्ट फैक्टर हमने मल्टीप्लाई किया. फर्स्ट रो में देखिए एलिमेंट्स हैं 4, 3, 7, 2. सेकेंड कॉलम ऑफ पोस्ट फैक्टर 2, 5, 8, 9 हमने मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास 4 into 2 plus 3 into 5, 7 into 8, 2 into 9 that is equal to 97. A21 मीन्स हमने सेकंड एलिमेंट निकालना था सेकंड रो ऑफ प्री फैक्टर इनटू फर्स्ट कॉलम ऑफ पोस्ट फैक्टर. क्योंकि हमें एलिमेंट्स चाहिए थे, पूरी मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी थी, हमने उन्हीं एलिमेंट्स की वैल्यू निकाली जिनकी पूछी गई है. इसके लिए हमने क्या किया, सेकंड रो पहली मैट्रिक्स का लिया, फर्स्ट कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का लिया. फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के 1, 5, 3, 8 और जो फर्स्ट कॉलम है पोस्ट मैट्रिक्स का 3, 1, 6, 8 इनको फिर हमने उसी प्रकार से मल्टीप्लाई किया 1 into 3, 5 into 1, 3 into 6, 8 into 8 और ऐड कर दिया गया. वी विल गेट 90. These are the values of the corresponding elements after multiplication. Next question. A मैट्रिक्स आपको देखिए 2/2 ऑर्डर की दे रखी है, उसके एलिमेंट्स हैं 6, 9, 2, 3. B is the matrix 2, 6, 0, 7, 9, 8. फाइंड द प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए. हमने दोनों ही प्रोडक्ट निकालने हैं. द प्रोडक्ट सॉल्यूशन में क्या करेंगे, द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड बिकॉज नंबर ऑफ रोज
are 2, number of columns are 2 in matrix A, but in matrix B there are 2 rows and 3 columns. AB is defined because number of columns of A is equal to number of rows of B. The order of the product में मल्टीप्लाई किया जाए तो जो AB होगी उसका ऑर्डर क्या होगा 2/3, क्योंकि जो कॉमन ऑर्डर था 2 2 वो कैंसिल हो जाएगा. इन शॉर्ट द प्रोडक्ट AB इज रिटन एज, इसकी मल्टीप्लिकेशन देखिए कैसे दिखाई गई है. 6 9 2 3 2 6 0 7 9 8. पहली मैट्रिक्स A थी, दूसरी मैट्रिक्स B, इनको मल्टीप्लाई किया. हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की पहली रो उठाई, सेकंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम, तो पहले कॉलम के एलिमेंट 2 7 थे, इसलिए मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करना है. 6 × 2 + 9 × 7, 6 × 6 + 9 × 9, 6 × 0 + 9 × 8, 2 × 2 + 3 × 7, 2 × 6 + 3 × 9, 2 × 0 + 3 × 8. इनको ऐड भी कर दिया मल्टीप्लिकेशन के बाद. 12 + 63, 36 + 81, 0 + 72, 4 + 21, 12 + 27, 0 + 24, and we get 75, 117, 72, 25, 39, 24. These are the elements after multiplication of these two matrices. Next, again these are two matrices, 6 9 2 3, 2 6 0 7 9 8. For the above matrices, the product BA is not defined because number of columns of B is 3, not equal to the number of rows of A equal to 2. पहली मैट्रिक्स में तो रो की संख्या 2 के बराबर है, जबकि उसमें कॉलम की संख्या 3 के बराबर है, इसलिए प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है. AB is defined, BA is not defined. In matrices, there are so many cases in which we can say AB is not equal to BA. In general, जैसे हम पहले करते थे मल्टीप्लिकेशन 3 × 4 = 4 × 3, but in case of matrices these are also arrangement of numbers. AB is not equal to BA in general. खास करके जब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को रेक्टेंगल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, रेक्टेंगुलर को रेक्टेंगल से मल्टीप्लाई करें, उसमें कई बार क्या होता है AB डिफाइंड है, BA डिफाइंड ही नहीं है, तो हम इक्वलिटी की बात ही नहीं कर सकते. प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल. अभी मैंने आपको बताया कोई ज़रूरी नहीं है AB BA के बराबर होगा. देयर में भी डिफरेंट केसेस, स्क्वायर मैट्रिक्स में बराबर भी आ सकता है, लेकिन बट देयर आर सो मेनी केसेस इन विच वी कैन से AB इज नॉट इक्वल टू BA. सो इन जनरल AB इज नॉट इक्वल टू BA. डिफरेंट केसेस, AB इज डिफाइंड बट BA इज नॉट डिफाइंड. ऐसे बहुत हमने पीछे भी क्वेश्चन किए हैं. A इज द मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर की है, B 3/4 ऑर्डर की ले लें, AB इज डिफाइंड क्योंकि पहली मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर है, इसलिए AB डिफाइंड हो जाएगा. हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हमें वैल्यू मिल जाएगी, नई मैट्रिक्स AB मिल जाएगी. और जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर 2/4 होगा. बट BA इज नॉट डिफाइंड. हम देख रहे हैं BA में कॉलम 4 हैं, रो 2 हैं. B मैट्रिक्स को पहले लिखना पड़ेगा, A को बाद में लिखना पड़ेगा. B में कॉलम की संख्या 4 है, A में 2 है, तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल. Hence we can say AB is not equal to BA. Case 2, AB and BA are both defined but are different orders. So AB is not equal to. ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जिसमें AB भी पॉसिबल है, BA भी है, लेकिन उनके ऑर्डर हमें अलग अलग मिल जाएं. जैसे देखिए एग्जांपल, A 2/3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स हमने ली है और B 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. AB and BA both are defined. डिफाइंड क्यों है? क्योंकि AB के अंदर पहली जो मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या 3 है और रो की संख्या सेकंड मैट्रिक्स की 3 है, इसलिए जो हमें AB मिलेगी वो 2/2 ऑर्डर की होगी. ऑन दी सेम पैटर्न क्योंकि BA करें तो वो 2/3 ऑर्डर की होगी, 2/3 × 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 ऑर्डर की मिलेगी, इसलिए AB BA के बराबर नहीं हो सकता. AB मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, जबकि BA 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. इक्वलिटी के लिए ईच एंड एवरी एलिमेंट विद ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी सेम. एलिमेंट भी सेम हो, उनके ऑर्डर भी सेम हो, तभी मैट्रिक्स बराबर हो सकती हैं. यहाँ पर AB BA के बराबर नहीं होगा क्योंकि AB 2/2 ऑर्डर का है और BA 3/3 ऑर्डर का है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल इवन देन AB इज डिफाइंड, BA इज डिफाइंड, बट AB इज नॉट इक्वल टू BA. Case 3, AB and BA are both defined and are of the same order, yet AB is not equal to BA because their corresponding entries are different.
ऐसा भी हो सकता है ए बी भी बी ए बी दोनों ही डिफाइंड हो, बट इवन देन ए बी और बी ए बी बराबर ना हो, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज डिफरेंट हो सकती हैं, उससे भी रिजल्ट अलग अलग आ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, इफ ए इज द मैट्रिक्स 1 2 0 3, बी इज द मैट्रिक्स -1 1 2 4, then AB and BA are both defined and are of the same order 2 by 2, even then AB is not equal to BA। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये। देखो एक मैट्रिक्स हमने सॉल्यूशन के लिए ए हमारे पास दी हुई है 1 2 0 3, बी हमने ली है -1 1 2 4, ए बी हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पहली रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4, 0 इंटू -1 3 इंटू 2, 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4, और ये हमें मिलेगा 3 9 6 12। नाउ बी ए -1 1 2 4 1 2 0 3 हमने मल्टीप्लाई किया, -1 को 1 से, 1 को 0 से, -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, एंड सो वी विल गेट -1 1 2 16। सारी एंट्रीज हमने देखी हैं, बराबर नहीं हैं, इसका मतलब ए बी बी ए के बराबर नहीं है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या है, जैसे हम पहले करते थे 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करो या 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करें, नेट रिजल्ट हमारे को 24 मिलना था। 2 इंटू 3 इंटू 4 मीन्स 2 3 जा 6 इंटू 4 मीन्स 24। चाहे 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लें या 4 से मल्टीप्लाई कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन द सिमिलर केसेस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अगर 3 मैट्रिसेस आपको दे रखी हैं, ई ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस, देन ए और बी को पहले मल्टीप्लाई किया, तब सी के साथ मल्टीप्लाई किया, ए बी इंटू सी। सेकेंड केस में हमने क्या किया, बी और सी को पहले मल्टीप्लाई किया, तब ए को मल्टीप्लाई किया। वेन एवर बोथ साइड्स आर डिफाइंड, ये ध्यान रखने की बात है भाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होनी चाहिए। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस ऑर्डर में पॉसिबल है, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होगी। क्वेश्चन देख रहे हैं, इफ ए इज द मैट्रिक्स 1 2 3 1, बी इज द मैट्रिक्स 2 1 3 2, सी इज द मैट्रिक्स 1 2 3 3 1 0, देन वेरीफाई दैट ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। हम ये वेरीफाई करना चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एसोसिएटिव के दौरान। पहले हमने ए और बी निकाला, ए बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ए मैट्रिक्स थी 1 2 3 1, बी इज द मैट्रिक्स 2 1 3 2। मल्टीप्लिकेशन के हमें ए बी मिल गई है 8 5 9 5। देयरफॉर ए बी इंटू सी क्या होगा, 8 5 9 5। सी हमारे को दे रखी है 1 2 3 3 1 0। हमें ए बी 2 by 2 की मिली है, जबकि हमारे को सी 2 by 3 की दे रखी है। हमने इसको मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट 8 + 15 16 + 5 24 + 0, 9 + 15 18 + 5 27 + 0। नेट रिजल्ट विल बी आफ्टर एडिंग 28 प्लस ये सेकेंड एलिमेंट होगा 21 24 24 23 27। नाउ वी विल फर्स्ट फाइंड बी सी। 2 1 3 2 बी मैट्रिसेस हमारे पास, सी मैट्रिक्स है 1 2 3 3 1 0। मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 5 5 6 9 8 9। अब हम इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर ए इंटू बी सी विल बी इक्वल टू 1 2 3 1 इंटू 5 5 6 9 8 9। 5 + 18 5 + 16 6 + 18 15 + 9 15 + 8 18 + 9। We will get 23 21 24 24 23 27. From 1 and 2 we conclude that AB into C that equal to A into BC. This means matrix multiplication is associative. The product of two non-zero matrices can be a zero matrix. अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे, 2 into 3
6 के बराबर आएगा, कभी 0 नहीं होगा। लेकिन मैट्रिक्स के केस में नॉन जीरो मैट्रिसेस मीन्स अगर एक भी एंट्री नॉन जीरो ले तो नॉन जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर उनकी मल्टीप्लिकेशन की जाए तो कुछ जरूरी नहीं वो नॉन जीरो ही आए, मीन्स नॉन जीरो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स हो सकती है। जैसे एग्जांपल दिया गया है, इफ A इज द मैट्रिक्स 1 0 0 0, B इज द मैट्रिक्स 0 0 0 1, हियर A इज नॉन जीरो, B इज नॉन जीरो। हमने प्रूव करना है A B 0 के बराबर होगा। सॉल्यूशन देखिए, ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है 1 0 0 0, बी मैट्रिक्स दे रखी है 0 0 0 1। मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 0 0 इंटू 0 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नेट रिजल्ट मिला एडिंग, आफ्टर एडिंग 0 0 0 0, that is zero matrix. Thus we conclude that A and B both are non-zero matrices, but their product AB is defined and that is a zero matrix where neither of A nor B are zero matrices. Means two non-zero matrix की multiplication zero matrix हो सकती है। Cancellation law does not always hold good in matrices. जैसा हम नंबर सिस्टम में क्या करते थे, दो कॉमन लिया, दोनों साइड से हम कैंसिल कर सकते थे। यहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है वो हर बार कैंसिल हो जाए। इफ़ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस सच दैट ए बी एंड ए सी आर बोथ डिफाइंड, ए बी भी पॉसिबल है, ए सी भी पॉसिबल है, और ए बी ए सी के बराबर है, तो हम ये नहीं कह सकते बी मैट्रिक्स सी के बराबर होगी। मीन्स ए बी ए सी के बराबर तो है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बी मैट्रिक्स सी के बराबर हो इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ जाए, क्योंकि मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो भी आ सकती है और ये नॉन जीरो भी। अगर ये नॉन जीरो है तो इसको हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर।